خبروں کی تفصیلات میں آپ کو بتائیں، گلستان جوہر میں 63 عمارتوں کو SBCA نے مخدوش قرار دے دیا ہے، جس میں متعدد فلیٹس اور گھر شامل ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پائی پائی جوڑ کر گھر بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کسی بھی فیصلے سے پہلے عوام کی تکلیف کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں درِ شہوار سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گلستان جوہر میں، جہاں پر SBCA کی جانب سے ایک لسٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہاں کی 63 بلڈنگیں، جس میں فلیٹس اور جو گھر ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں، جنہیں مخدوش قرار دیا گیا ہے SBCA کی جانب سے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک رہائشی موجود ہے، ان سے میں جانوں گی کہ SBCA کی جانب سے مخدوش قرار دیے جانے کے بعد ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد ڈائریکٹ آ کے وہ عمارت پہ سیل کا ایک لگاتے ہیں کہ یہ عمارت سیل ہے، اور اس کے بعد وہ پھر جو رہائشی ہیں تو ان کو بے گھر کیا جاتا ہے۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ رہائشیوں کے لیے تو مسئلہ ہے نا، جس نے اتنا پیسہ لگایا ہے تو وہ تو نہیں چاہتا کہ مجھے اس میں نکال دیا جائے یا توڑ دیا جائے، جو کچھ کیا جائے، لیکن یہ بھی سیفٹی بھی بڑی لازمی ہے۔ اگر کچھ نقصان گر جائے، کچھ ہو جائے یہ تو جان کا خطرہ ہو تو اس سے بہتر ہے پھر اس کو ڈرائیو کرنا بھی بہتر ہے۔ جان جو ہے نا وہ نہیں آتی انسان کے بار بار۔ اب پوری فیملی رہتی ہے، بچے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، اور بھی خاندان کے لوگ رہتے ہیں، اب جن کی جوائنٹ فیملی ہیں تو ان کے لیے اچھا ہے جو پہلے اپنی جان ضروری ہے، پھر پیسہ تو پیسہ آنی جانی چاہیے، لیکن پیسہ بھی بہت مشکل سے بنتا ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے نا، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کسی بھی اس طرح کے اقدام سے پہلے کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے اداروں کو ہوش آتا ہے کہ بھئی یہ اس طرح بھی کرنا چاہیے، تو اس سے پہلے ایسا کیوں کوئی لایا عمل اختیار نہیں کیا جاتا جس سے کہ اس طرح کے کسی جانی نقصان سے بھی بچا جا سکے اور مالی نقصان سے بھی بچا جا سکے؟ ہماری گورنمنٹ جو ہے نا ان کو بھی غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ جو اب یہ بلڈنگ ہے یا ہر کسی کے پہلے پتہ نہیں کیا کیسے کیسے جوڑ جوڑ کے لوگوں نے بنائی ہوگی، لیے ہوں گے گھر، اور پھر اس مہنگائی کے دور میں وہ کہاں جائیں گے؟ جنہیں SBCA کی جانب سے مخدوش قرار دیا گیا ہے، اس پہ رہائشی کا کہنا تھا کہ اس طرح کے اقدامات انسانی جانوں کو مزید زیادہ سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن حکومت کو ایسا کوئی لایا عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ نہ کسی قسم کا جانی نقصان ہو، نہ ہی کسی قسم کے مالی نقصان سے شہریوں کو سامنا ہو۔ جی شاہ لطیف ٹاؤن میں دلخراش واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، جہاں تقریباً 2.5 ماہ قبل اغوا ہونے والا معصوم بچہ حسین علی بھیک مانگتے ہوئے ملا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مبینہ اغوا کار کو گرفتار کر لیا ہے۔ واقعے کا مقدمہ بچے کے ورثاء کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔ مقوی بچہ اپنے چچا کو سیکٹر 16A کی مسجد کے باہر بھیک مانگتے ملا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ مبشر حسین سے۔ مبشر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں شاہ لطیف سیکٹر 17A کے مقام پر موجود ہوں، جہاں تقریباً 3 ماہ قبل جو ہے وہ ایک مبینہ طور پر 3 سالہ حسن علی بچے کے اغوا ہونے کا معاملہ تھا۔ میرے ہمراہ بچے کے چاچا ہیں ناصر شاہ، بتائیے گا سر تمام تر واقعہ۔ یہ تقریباً آج سے 3 مہینے پہلے لاپتہ ہوا یہاں سے، پھر ہم لوگوں نے اس کو ڈھونڈا، کہیں بھی نہیں ملا۔ پھر آج سے 2 دن پہلے یہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہیں، سیکٹر 16 میں فاروق اعظم مسجد ہے، ادھر سے ماشاءاللہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو یہ جو ہے نا ایک آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کو ہم نے بولا یہ بچہ کون ہے؟ کہہ رہا ہے میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ ہم نے اس کو بولا یہ تو ہمارا بچہ ہے، بھتیجا ہے، تیرا کیسے بھائی کا بیٹا ہو گیا؟ کبھی وہ کہہ رہا تھا اس کی امی مر گئی ہو، یا ایسے چکر چکر کرنے لگا اور بھاگ رہا تھا۔ پھر ہم نے اس کو پکڑ کے بچہ لے لیا اپنا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جی جیسے کہ 2 روز قبل جو ہے وہ بچہ فاروق اعظم مسجد ہے اس گیٹ پر جو ہے وہ داغری کر رہا تھا۔ اس دوران جو ہے وہ ان کے چچا نے دیکھا، اس کے بعد پولیس کو اطلاع دی، جو اس بھیک پر کام کروانے پر مجبور کیا جس ملزم نے، اس کو شاہ لطیف پولیس نے گرفتار کر لی ہے۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے جو ہے اس سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ گرفتار ملزم کی شناخت جو ہے وہ شہریار علی کے نام سے ہوئی ہے۔ جی ڈسٹرکٹ ساؤتھ خطرناک ترین کراچی کی 588 میں سے 456 مخدوش عمارتیں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں موجود ہیں۔ وزیر بلدیات سعید غنی کی زیر صدارت اجلاس میں انکشاف، عمارتیں خالی کرنے والے مکینوں کو ملنے والا کرایہ 20,000 روپے سے بڑھا کر 30,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ خطرناک ترین
कराची की 588 में से 456 मखदूश इमारतें डिस्ट्रिक्ट साउथ में मौजूद। वजीर बल्दियात सईद गनी की जेर सदारत इजलास में इंकशाफ। वजीर बल्दियात सईद गनी की जेर सदारत मखदूश इमारतों के हवाले से इजलास। मुतासरीन का पहले 3 माह का किराया सिंध हुकूमत के जिम्मे, जो 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने रिपोर्ट पेश कर दी। इंतहाई मखदूश 61 इमारतों का सर्वे करके 56 को खाली कराया गया। इमारतें खाली होने से 300 से जायद फैमिलीज मुतासिर हुई। खाली कराई गई इमारतों में 25% किरायादार थे, 170 से 180 पगड़ी जबकि दीगर मालिकान थे। सईद गनी ने वाजिया किया कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बगैर इमारत को बिजली पानी का कनेक्शन दिया गया तो मुतल्लिका अदारे के खिलाफ कार्रवाई होगी। रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार घर की लीज कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बगैर नहीं करेंगे। जो इमारतें रिहाइश के काबिल बन सकती हैं इन्हें लिस्ट में शामिल ना करें। SBCA एक्ट में तरमीम की तैयारी, 1 हफ्ते में सिफारिशात तलब कर ली गईं। अवामी शिकायत के लिए खतरनाक इमारतों का ऑनलाइन पोर्टल बनाने का ऐलान। मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खतरनाक इमारतों के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज और माहिरीन की मदद से सर्वे मुकम्मल किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का बड़ा इकदाम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की नौकरियां खतरे में। SBCA के 21 अफसरान को फाइनल शोकास नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक बड़ा इकदाम जो है वो सामने आया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को, मुलाजमीन की जो है वो नौकरियां खतरे में आ गई हैं। SBCA के 21 अफसरान को फाइनल शोकास नोटिस जो है वो आज जारी कर दिए गए हैं। DG SBCA की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर भी जो है नोटिस हासिल करने वालों में जो है वो शामिल हैं। शोकास नोटिस में अफसरान को अपनी सफाई पेश करने का आखिरी मौका जो है वो फराहम किया गया है और ये कहा गया है कि अफसरान अपने इलाके में गैर कानूनी तामीरात रोकने में जो है वो नाकाम रहे हैं। मज़कूरा अफसरान ने गैर कानूनी तामीरात की जो है वो सरपरस्ती की है। गैर कानूनी तामीरात होने के बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? DG SBCA की जानिब से शोकास नोटिस में जो है तमाम तर जो है वो सवाल के जवाबात जो है वो मांगे गए हैं और अफसरान व मुलाजमीन को शोकास नोटिस का जवाब देने के लिए 7 रोज की जो है वो मोहलत भी जो है वो दी गई है। शोकास नोटिस का जवाब ना देने की सूरत में अफसरान को गैर कानूनी तामीरात का जो है जिम्मेदार करार दिया जाएगा और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। गैर तसल्ली बख्श जवाब की सूरत में END रेगुलेशन के तहत जो है वो तमाम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान व मुलाजमीन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी शुएब, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। वफाकी सरकार ने सिंध, पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर में तैनात 19 ग्रेड के 8 अफसरान की खिदमत वापस लेने का फैसला कर लिया है। 8 अफसरान को 15 रोज के अंदर वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने का हुक्म, जिसमें 3 अफसरान का ताल्लुक सिंध से है, जिसका वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहडियो से। आज़ाद से राब्ता बहाल नहीं हुआ है। आपको बताएं कि वफाकी सरकार ने सिंध, पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर में तैनात 19 ग्रेड के 8 अफसरान की खिदमत वापस लेने का फैसला कर लिया है। 8 अफसरान को 15 रोज के अंदर वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने का हुक्म, जिसमें 3 अफसरान का ताल्लुक सिंध से है, जिसका वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट इंसदादी दहशतगर्दी और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अफसरान के खिलाफ नैब इंक्वायरी का मामला। सिंध हाई कोर्ट का SP SC अफसरान के खिलाफ नैब इंक्वायरी पर बरहमी का इजहार। अदालत ने नैब हकाम को 2 रोज में अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी से मुतल्लिक दस्तावेजात पेश करने का हुक्म दे दिया। कारागर में 5 मंजिला इमारत मखदूश करार देकर खाली कराने का हुक्म। वकीलों ने SBCA की जानिब से इमारत को सील करने के खिलाफ हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। अदालत ने SBCA के जोनल डायरेक्टर को रिकॉर्ड के हमरा आइंदा समाअत पर तलब कर
लिया। कराची के अवामी पार्क्स की कमर्शलाइजेशन का मामला अदालत पहुंच गया। जमात इस्लामी ने पार्क्स की निजकारी के खिलाफ हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 5वीं क्लास की कमसन लड़की से शादी करने का मुकदमा, गलती की अदालत ने मुलजिम जिशान की अबूरी जमानत मनसूख कर दी। तेज रफ्तार डाले की टक्कर से कम उम्र लड़के की हलाकत का केस, मुलजिम अयाज ने अदालत से 50,000 रुपए में अबूरी जमानत हासिल कर ली। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के खिलाफ सहाफी पर हमले का मुकदमा, मुलजिम अरमगान ने अदालत की जानिब से दी जाने वाली मुकदमा की नकूल लेने से इनकार कर दिया। अदालत का मुलजिम अरमगान की कस्टडी अदालत इजाजत के बगैर वापस ले जाने पर जेल हकाम पर बरहमी का इजहार। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट और इंतजामिया से वजाहत तलब कर ली। शहरी तुफैल के मुबैना अगवा और रिश्वत तलब करने का केस, मकामी अदालत ने DIG साउथ को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। ग्रेड 19 के अफसरान को DG फिशरीज का इजाफी चार्ज देने का मामला, DG फिशरीज के इजाफी ओहदे के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। हाईकोर्ट ने फ्रीकैन से अगस्त के दूसरे हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। निजी कंपनी से 53 करोड़ से जायद का बैंक फ्रॉड का केस, अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर मुलजिम आतिफ खान और दीगर मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। हाईकोर्ट ने तीनों मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत एक साथ मुंसलिक करने की हदायत कर दी। एक माह के दौरान सिंध भर के सरकारी मुलाजमीन की मुश्तरका यूनियंस की जानिब से मुतालबात की मंजूरी के लिए चौथा मुजाहरा और वज़ीर आला हाउस पर कल एहतजाजी धरना देने का फैसला किया गया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। सिंध भर के सरकारी मुलाजमीन मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन का वज़ीर आला हाउस पर धरने का फैसला। मजदूर रहनुमा सैयद जुल्फ़िकार अली शाह कहते हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस, फौतगी कोटा और तनख्वाहों में 50% इजाफे के मुतालबात हैं। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। तो हमारा मुतालबा बुनियादी तौर पर यही है कि जो टाइम स्केल है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है सरकारी मुलाजमीन की और दीगर अहम मकामात के मुलाजमीन की, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो है ये इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। इसके लिए हम एहतजाज करें। दीगर रहनुमाओं का कहना था कि सिंध भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए एहतजाज किया जा रहा है और हुकूक की इस जद्दोजहद में जल्द कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। देखिए जी, हमारी तो ये जद्दोजहद जारी है और मैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो मजदूर की पार्टी है, किसान की पार्टी है, मैं बिलावल भुट्टो साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर 3 सूबों में दे दिया गया है तो फिर आप क्यों डिले कर रहे हैं? आप तो मजदूर के नुमाइंदे हैं, आप फौरी तौर पे इस बात का ऐलान करें और सुबह ही करें। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। कल का जो एहतजाज है वो अंदरूनी सिंध के सारे मुलाजमीन जो है सिंध हुकूमत से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो इंशाल्लाह सारे कराची प्रेस क्लब पे पहुँचेंगे और उधर धरना होगा, उधर से रैली निकलेगी जो वज़ीर आला हाउस तक जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की मजदूर यूनियंस मुश्तरका तौर पर अपने मुतालबात को लेकर गुज़िश्ता 1 माह से जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन ताबिश के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, नादरा ने शहर में मजीद 3 बिग NRC बनाने का ऐलान कर दिया है। शहर में 3 बड़े सेंटर मलीर कैंट, मलीर और सरजानी टाउन में बनाए जाएंगे। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में देखिए। शनाख्ती कार्ड, बे फार्म और दीगर दस्तावेज़ात बनाना अब मज़ीद आसान। नादरा ने कराची में मज़ीद 3 बिग NRC बनाने का ऐलान कर दिया। DG रीजनल हेड ऑफिस कराची की दावत पर तर्जुमान नादरा सैयद शबाहत अली ने कराची ऑफिस का दौरा किया और सहाफ़ियों को बताया कि शहर में 3 बड़े सेंटर मलीर कैंट, मलीर और सुरजानी टाउन में बनाए जाएंगे। 3 मेगा सेंटर्स हमारे 3 मेगा सेंटर्स ऑपरेशनल है, 1 मेगा सेंटर ऑपरेट करता है आउट ऑफ विच 24/6। और इसके अलावा जो हैं मेरे ख्याल में 3 अपकमिंग हैं जो आपके सेंटर्स अभी 3 अपकमिंग सेंटर्स हैं। मैं आपको एग्जैक्ट शेयर कर देता हूँ, लेकिन वो इनके साथ शेयर सैयद शबाहत अली खान का कहना था कि नादरा ई-गवर्नेंस, नेशनल सिक्योरिटी और एक शनाख्ती कार्ड निज़ाम के तहत शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए मुतादिद इस्लाहाती मनसूबों पर काम कर रहा है। अच्छा, नादरा की जो एप्लीकेशन है उसके हवाले से शायद लोगों में आगे ही का ही एक फैक्टर है। मैंने अपने जानने वालों में जितने लोगों को एक मरतबा एप्लीकेशन रिकमेंड की है वो एप्लीकेशन के थ्रू ही अप्लाई करते हैं। कोई फीस का कोई फर्क नहीं है। आप अपनी तस्वीर भी इसी पे ले लेते हैं, बायोमेट्रिक भी इसी पे ले लेते हैं, फीस वही है। तर्जुमान नादरा का मजीद कहना था कि गैर कानूनी तरीके से हासिल करदा रिकॉर्ड वापस किए जा सकते हैं। रज़ाकाराना तौर पर कार्ड वापस करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नादरा हुक्काम के मुताबिक इदारा आने वाले दिनों में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों की शनाख्त, सिक्योरिटी और सर्विसेज को मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरआज़्म है। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21।
ओवरसीज पाकिस्तानी का कराची आना जुर्म बन गया। थाना गुलिस्तान जौहर ने बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी शहरी को बगैर वारंट जबरदस्ती घर से उठा लिया। ओवरसीज पाकिस्तानी को 10 घंटे तक हब्से बेजा में रखकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आपको बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी का कराची आना जुर्म बन गया। थाना गुलिस्तान जौहर ने बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी शहरी को बगैर वारंट जबरदस्ती घर से उठा लिया। ओवरसीज पाकिस्तानी को 10 घंटे तक हब्से बेजा में रखकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। गुलिस्तान जौहर ने बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी शहरी को बगैर वारंट जबरदस्ती घर से उठा लिया। ओवरसीज पाकिस्तानी को 10 घंटे तक हब्से बेजा में रखकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुबश्शिर हुसैन से। मुबश्शिर बताइए। जी बिल्कुल, जैसे कि ओवरसीज पाकिस्तान का कराची आना जुर्म बन गया और थाना गुलिस्तान जौहर ने बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी शहरी को बगैर वारंट जबरदस्ती घर से उठा लिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी को 10 घंटे तक हब्से बेजा में रखकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी का कराची आना जुर्म बन गया। थाना गुलिस्तान जौहर ने बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी शहरी को बगैर वारंट जबरदस्ती घर से उठा लिया। मुबश्शिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबश्शिर। जी बिल्कुल, जैसा कि ओवरसीज पाकिस्तानी का कराची आना जुर्म बन गया। थाना गुलिस्तान जौहर ने बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी शहरी को बगैर वारंट जबरदस्ती घर से उठा लिया। ओवरसीज पाकिस्तानी को 10 घंटे तक हब्से बेजा में जो है वो रखा गया। ये शहरी ने जो है वो पुलिस पर और अपनी जो है वो अहलिया पर आयद किया है कि मुबीना तौर पर सालों की हमरा मिलकर भी जो है वो तशद्दुद बनाया गया। उसके बाद साजिश रचाकर मुझे गुलिस्तान जौहर थाने मुंतकिल करके मेरी जो है मोबाइल फोन और कीमती जो रकम है वो अपने पास रख ली। पुलिस ने रिहाई के बदले जो है वो मुबीना तौर पर 1.5 लाख रुपए रिश्वत तलब करने पर जो है वो मुझे छोड़ा गया, जबकि साथ ही पुलिस एहलकार मुबीना तौर पर मुझे झूठी एफआईआर दर्ज करके धमकाते रहे, जिस पर ओवरसीज शहरी का वीडियो बयान भी जो है वो सामने आया, जिसमें स्विट्जरलैंड से पाकिस्तान आया हूँ, वहीं का शहरी हूँ, अहलिया के साथ मामूली तल कलामी हुई थी जिसने अचानक शिद्दत इख्तियार कर ली। बीवी ने मेरे सालों के हमरा मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। मुझे जौहर पुलिस ने हिरासत में लेकर जो है वो मेरी अहलिया और सालों के कहने पर थाने मुंतकिल कर दिया गया, जिस पर पुलिस ने मोबाइल फोन नकदी कब्जे में ले ली मेरी। मजीद साथ ही इस तमाम तर मामले जब ये मामला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया, उसकी दूसरी जानिब जो है ओवरसीज पाकिस्तानी पर पुलिस के तशद्दुद के मामले पर DIG ईस्ट जोन है डॉक्टर फारूक लंजार, उन्होंने मुतासरा शहरी को जो है वो डिफेंस थाने बुला लिया है। कुछ ही देर में शहरी जो है वो डिफेंस थाने पहुंचेंगे। पुलिस जो है वो तमाम तर वाक़े के मुतालिक मज़ीद तहकीकात कर रही है। जी मुबश्शिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मौसम के बदलते तेवर, कभी तेज तो कभी कम, मगर मुस्तकिल गर्म मौसम में कराची वाले कुछ ठंडा, मुनफरिद और मज़ेदार ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे में आइसक्रीम खाने के शौकीन अफराद ने रुख किया शहर के कदीमी इलाके बंस रोड का, जहां काजू आइसक्रीम और काजू रबड़ी शेक ने आवाम को दीवाना बना रखा है। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। कराची की गर्मी हो, सूरज का जलाल हो या हो पसीने से भीगा दिन, तो बस एक ही नारा सुनाई देता है, कुछ ठंडा कुछ खास होना चाहिए। और ऐसे में बंस रोड की मशहूर समाना काजू आइसक्रीम और काजू रबड़ी शेक बन चुका है ठंडी लज्जत का जरिया, जो खाने के शौकीन अफराद का दिल लुभा रही है। असल काजू खालिस दूध रबड़ी का गाढ़ा लम्ब से तैयार करदा काजू आइसक्रीम और काजू रबड़ी बनाने वालों का कहना है ये हमारी खास रेसिपी है, ना कहीं मिलेगी और ना ही कोई बना सकेगा। काजू भी खाई है मैंने, इनकी काजू भी बेस्ट है, लेकिन मुझे जो इनकी पसंद आई है ना, सबसे कैरेमल क्रंच समझ आई है। फैमिलीज का कहना था कि आइसक्रीम तो हर मौसम में ही पसंद की जाती है और इसमें जायका भी उम्दा हो तो फिर क्या ही बात है। गर्मी है, ठंडी चीजें खाना पसंद करेंगे। हम लोग कोशिश करते हैं कि बारिश वारिश हो जाए तो बेहतर होगा ज़्यादा, तो सीवी वगैरह की साइड पे चले गए, गर्मी के मौसम की वजह से वहाँ राउंड लगा लेते हैं। आइसक्रीम बस, कोल्ड ड्रिंक। न सिर्फ ये शेक और आइसक्रीम जिस्म को ठंडक देती है, बल्कि गर्म मौसम में राहत बख्श भी है। कराची के जायका शनास अवाम ने गर्मी का सबसे लजीज तोड़ करार दिया है। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ राहिल बेग, सिटी 21।